Please message me. Am I audible? If I am audible, yeah, okay, okay. Thank you. So I'd like to welcome each one of you to this product training session. And today also, I think Chakravarti sir is going to say about some products and related to disease disorders and the organs, everything he will go to discuss. So till then, as you know that our marketing management has given our marketing managers the chance to connect with you in this program also. And so let me introduce myself first. I am Anjan Buragohai, Marketing Manager Northeast, and I'm based at Guwahati branch office, and I'm looking after all the northeastern 7 states. And today I'm doing this program from the office only because office was open from 2nd September. So I'm doing it for the first time from the office. And till then, when Dr. Chakraborty sir is coming, till then I will tell about nutraceuticals only because as it is a product training session, so I am going to say about nutraceuticals only. That as we all know that nutraceutical word actually comes from the words nutrition and the pharmaceutical. And also, what is nutraceutical? Nutraceutical is a food or say food product that provides health and the medical benefits, including the prevention and the treatment of diseases. So, a nutraceutical is demonstrated to have a physiological benefit or say provide protection against chronic diseases. And apart from disease prevention, they play an important role in say disease management or therapy like that. And also the growing customer awareness regarding healthcare, and has led to the tantalizing opportunity for a nutraceutical breakthrough in this market in the pharmaceutical battleground actually, as an alternative to modern medicine because before there was no nutraceuticals and the people used to get it from their foods only, but now there is some deficiencies in the food. That's why we bought nutraceutical products, and it will give a strong battle against the pharmaceutical because we all know the how pharmaceutical products works and how side effects, how many side effects we used to get from the pharmaceutical products because they are based on chemicals. So this evolution will lead us into a new era of, I think, medicine and the health, and in which the say the food industry will become a research oriented, and the one similar to the pharmaceutical. It will definitely become similar to a pharmaceutical industry because every year this one direct selling or say nutraceutical industry, wellness industry is developing day by day, and so it will definitely will be at tally with the pharmaceutical industry. And also the quality of life in terms of say income, because nowadays income has increased, spendings and our lifestyle has improved. And what will happen, it will also affect it will developing our economic development, as well as it has also thrown up a major challenge in the form of say lifestyle diseases. The first victim of this lifestyle change has been our food habits. As you know, consumption of junk foods has increased manifold, which has led to a number of diseases related to nutritional deficiencies. And the nutraceuticals products can play an important role in controlling them, as we all know that. And that is what we need to focus mainly. We have to make the people understand how nutritional deficiency can harm them, and why nutraceuticals are essential for everywhere for each one of us. We have to make them understand that thing. So we have to do. So what we have to do now? We have to teach these things to the people, or say to the new prospects. We have to teach them. Uh, for that for if we want to teach them, then what we for that we should be well equipped first. I mean, we should all have the knowledge about our say anatomy or physiology of our body, and also about our products, how it works on our body or on our organs. We have to we have to gather all that knowledge, and then that's why we are always requesting for each one of you to bring new persons also to this training session,
to this product training session so that they can learn, they can get knowledge about the how our organs work, or what is the how our physiology, what is our anatomy, so that they can understand the every whole thing, and that they can implement it in the field. That is what we always want to say. We should have also also have the knowledge about our organs, also how the organs work, or say how one organ and the another organ is supporting each other, because we should have that vast knowledge. And say when we are success in making it, so say we explain everything to a person, and that prospect understand this, and then surely he will ask for you the remedy. Then he will ask you, is there any say medicine, or say any remedy, so that I can get cured of this disease or not. Then at that moment we can promote our products, and then promote our product, and then not before that. Because if we approach anyone with products first, then it's certain that we will lose that customer. We will definitely not get that customer, because he will definitely think that he is coming to sell the product, which we always used to say. So we have to go there as a awareness, to make them aware of his say if he is having some problem, then we are making the awareness of his problem, that he can understand that why he is having that. And after getting all the information, then he will automatically ask you that, yeah, I am having this type of problem, that is there anything with you that, so that this I can get rid of this problem. Then you can promote our product, you can say about our product. Then while saying about our product, you will need to say about how this product will work. You have to say them that this product, if say for diabetes only, if you say if person is having diabetes, you explain him all the physiology of the how diabetes is happening, how why diabetes he is having that diabetes, where is the main problem, why one of few days later again from one organ to another organ it is damaging. If you understand all the make him understand all the things, then what happens, he will then ask you that, okay, then for with you is there any medicine, then you will suggest our dietary diagnosis. Then you have to tell them that our dietary, how it will how it will work in him. You have to say them that our due to your pancreas only diabetes is happening, and our dietary will work directly in the pancreas. That way you have to explain everything. So for that, you must have the knowledge of our physiology, anatomy, and our how our organ works. Along with, you have to know about our products also, because you have to know the how our products work. Also, we cannot say. Yesterday also, Chakraborty sir told that we normally used to tell to the prospects that if someone is having say headache or some stress, say no, he is not having sleep, we said for sleep you take Panazinchen. But that is not true, because if we say Panazinchen, he will take 1-2 days, or say for another reason he is having some he is having not sleep. But after taking our medicine 2-3 days, he used to have good sleep. Then he automatically he will not take our product, because you only told him that you are not having sleep. That's why we are giving this Panazinchen. But if we explain him that due to your brain nervous system, due to your stress in the brain, if the sleep is not happening, or you are having this type of problem, then automatically when you give the Panazinchen, you have to tell that this will work in your nervous system only, in your brain nervous system. It is not for sleep, because as soon as the brain nervous system will work smoothly, automatically your sleep will also come, your stress level will be also down. So we have to explain that thing. We don't need to say that if you give the, for say if anyone is having liver problem, you are giving strong leaf. If you say that for your liver is damaged, or say your liver is having problem, so you take strong leaf. Yeah, we are giving the strong leaf for liver only, but we have to explain how it will work, and how it will affect his other organs also by taking this strong leaf. We have to tell that thing. And then so when so that's why I told that we should never approach with products first. Uh, Yes, Sagar Rizal. Actually, this is an English program, so we have to follow the company norms. That's why I'm speaking in English. So I think Dr. Shah will continue with both English and Hindi.
But I was supposed to talk in English only because this program is scheduled for English. That's why. So let's wait. Dr. Shah will come and continue with both the language. And so, what we always say is that first we have to do what awareness first. Then it will automatically create demand, and automatically your products will be sold. By doing so, your business will also increase. And the one more thing I want to say that as soon as you join someone with us on the first day itself, teach him how to use our Audience app and how to Audience app and the Epi Home app. Mainly in Audience app, to teach him how to sign up new joinees, how to repurchase, how to transfer PVs, or say how to check his incomes, or how to check his genealogy, etc. That type of things you can make him understand on the first day itself, and also you teach him about the Epi Home app also, how to place order, how to refer customer or distributors, because it will save you valuable time in future. Because if you don't teach them, then what happens that prospect, if he wants to place an order for the next time, he will call you, and also you have to do it for him because he is your team, he is your downline. So you have to do it. And then this way, what happens, you have to give another time to him. But I had seen many leaders in my area who work as a, I don't want to say the word, but they are working as a salesman, because in direct selling, if you want to get success easily and smoothly, then one have to work smartly. Because for in direct selling, if you work smart, then only you will get success. That is also easily and smoothly you will get success. But if you work as a salesman, it will be difficult. Yeah, you may get success, but it will be very difficult for you to get success. It will take a lot of time, because you all are not salesmen, right? You all are health advisor, and your work is to make awareness among the people. And also to individually, it will generate the business. And the delivering of products to the customer is our job, because it is our company's job that we should deliver our products. Or so teach them on the first day itself about Epi Home, because it is very easy to use Epi Home, because everybody, we all know how to use, because uh, through Epi Home also one can join, and he can make many people joining. So we should make them understand how to use Epi Home, and also there are a lot of offers are there running on regarding Epi Home. Daily highest order is also there. Then this one also is there. The daily that promotional offer 1,000, 3,000, and the 5,000 offer is also there. So we should just not for the offers I'm saying, just for you or yourself only, because to a certain limit you can help them, because you also is having team. If you are say you become 6 diamond, then under you there will be 801 diamond. So to 801 diamond, it is not possible to you single-handed, individually you cannot help them. So if you teach to your downline, say you have joined, you are 1 diamond, and then after that you become 2 diamond, and then you join 2-3 persons under you. And when you make them in the first day only, when you make them understand about this one, about the Epi Home or Orient app, in the first day when they get to know about the Epi Home, then what happens in the when they will make any joining, they will teach to them also. That way, what happens, your workload will become workload automatically, it will become low. So that way also it will help. And also if you do say what I told that many leaders are doing salesman, means they normally, I have seen that they have what they used to do. The new customer who the downline used to call him and then tell that I need sir this type of product. In my downline also they need this type of product. I'm giving you you sir just come to my place. I will give you the money. You just bring me the product. They used to go there and they collect the money. They invoice and they will give the products to them in their home. In that way, if they give to 2-3 leaders on a day, then it becomes one single day completely goes. And we know that our time has value, and we have to use that valuable time. But he has spent one day on that only, because there is no any positives or any good thing he had done regarding his teamwork. He is helping his downline, but indirectly he's spoiling his time also. So we should do that one.
And also regarding Epihome, also regarding Orients app, also we should learn, because in Orients app that day also I told that there is only three things we need to do. That is only that we can do, that is transfer, repurchase, and then sign up. That three things which we can do in a Orients app. So because by we can do order also in Orients app, but if we do order in Orients app, it will be harder than the Epihome, because we can, it is easy to do in Epihome only. So if you, for the first time, if you teach them the how to sign up a new joinee, and how to repurchase, how to transfer the points to the downline, if you teach them, because it will take only say maximum 1 hour to teach both the Epihome and the Orients app. So if we teach them, then what happen? I have seen many leaders this way also, that during the joining, during the closing, means on Thursday, we used to close at by 5 or 6. We used to have the closing. That is the deadline of the closing. And at the last moment, their downline is sending money. They could not send the money, or they don't. They are having the money, but they are having the prospect also. They want to join, but the downline don't know how to use the Orient 7. That they don't know how to sign up a new joinee. That's why what happens, in that week that joinee was not made. That new sign up cannot be made. So if we teach them from the first day only, then it will help you that way also. Because in that last moment situation, sometimes it always getting that problem. Because I always used to get, because leaders used to call me and they tell that, sir, my downline is trying, but he don't know how to do. So the closing is at 6, so it will extend or not. They used to call me and ask me, but company is having some norms that we used to close by 6 or by 5. But that's why when a company closes it, then what happens, that joining cannot be made, because they don't know how to use. If they make him understand on the first day only, then that problem never arises. So we should give importance to that thing also, because yes, we have to visit people, and they also we have to support our downline. We have to support downline, and they also that they this one Biplav Biswas sir told that about these things only he had told, and also about showing the plan. Because I also have seen that many leaders don't know the how to about the plan also, they don't know the 7 ways of income also, they don't know. They are doing, but they are, if you talk to them, you can come to know that he is 3 diamond or say 4 diamond, but he don't know how to, what is the plan, what is the company norms, everything he don't know. If you ask him about the company profile or promoter, he don't know anything. Just, but he is a 4 diamond or 3 diamond, he don't know anything. That's why what happen, if he is willing to join someone also, if he talk to some person, new person also. Say what happen if say I am the leader, I am 4 diamond, and I am talking to one new person, and I don't know anything about the company profile or promoter, but I am 4 diamond. I am talking to the person. I am told that I have a company, I am getting income like that. So would you like to join? Then he will ask me the details. Then if I tell that, okay, I just call my upline and I will make you talk with him. If he make that way, then okay, it is good. You have to make to the upline, and then you have to talk to them. But if you cannot say the first, in the first time only, if you cannot say some basic things also to the person, that person whom I talk with that person will automatically lose the trust on me, because he knows that he is in 4 diamond position. He is saying that he is 4 diamond position. He is getting income also, but he don't know anything about the company. Then how can I join with him? In the future, he cannot support me in the future. So automatically what happens, he will lose the trust, and then automatically 50% he already gone from you. That's why if you can make some basic, yes, if you are 1 diamond, 2 diamond, it is difficult to understand, because for the 1 diamond or 2 diamond, it is difficult to give business plan or about say about the company. But he have the knowledge to say about the basic things of the company, basics like our company profile or say promoter. About the business plan, he can say that, yeah, I'm saying about the profile and the promoters, my business plan I can say, but my senior can explain you more better. Then he can make the call with the upline, and then he can make it talk with him. That way it will help. But if he about the company also, if the person is asking that when the company was established, or where is the headquarter, in how many countries it is, your company is there,
If he cannot answer any of the questions, then what happens? He will automatically lose the trust, and he will never join. I can guarantee you 100% that he will never join on the. He will, if he had encouraged also, then he will search for another leader from our team only. He will join there because it will never happen. That's why for that, what we have to do on the first day only, though he is a one diamond also if we teach him the basic things like the profile promoters, that can he one if one is joining in one diamond, that things he can catch, he can know about the, ask him to make the notes of all the profile or say promoters, everything note down, and then ask him to practice regular. Then he can do that. But about the business plan, what you have to do, that the Biplab Biswas are also saying that one. That you what you have to do, you have to when he will organize some meetings or say he is asking you to come for any home meetings, you go first 2 3 days you give the plan in front of him, and after that you say that I am here, you give the plan, you make him do the plan. If he do anything wrong, then you are there, you can help him. But that way, what happens after doing say 4 5 meetings, he will also understand that he will be developed and that he can do the presentation by himself also. This way, automatically, from your downline also you can develop the downline persons, and so we are always requesting that one only, that you do this means that type of business presentation you give, that because that presentation will be fruitful. Because if you go to any many leaders also doing, I am saying that one also, that many leaders going to their downline, the downline used to organize 4 5 people and ask him to come, and they are doing home meetings, and in all the meetings that the Biplavs are also told that downline, the upline is going, and that the person who is the customer, he is there, and when the upline is giving the plan, the downline is busy with phone, or he is talking to another in that family only. He is talking with another people about some another not related to business matters. He is talking some personal matters with them. But what we have to do, we have to make them downline that when we are going for any home meetings or say meetings, he have to switch off his mobile and he have to sit and he have to listen to you what you are saying, so that when he listens after in the first day only, you just say him that, see, I am coming to help you, you have to come, you have to listen to us, listen to me what I am saying. After doing 1 or 2 meetings you have to do, then I will watch you how you are doing. Then automatically he will give concession, because uh, when you say that after 3 meetings he have to do the planning, he have to give the business plan, then he will certainly give interest in that, and he will give the importance. So we have to say that way it will help him to develop. That way we can develop the downline. But if we many leaders, what they're doing, they calling to they going to the downline home. They go with the downline to many different homes for home meetings or say meetings. Only the upline is doing the business plan, or in everywhere. Say in a day, say they went to 5 6 places in a home meeting. In the 5 6 places, the upline is giving business plan for 1 hour, 1 hour, but the downline is just going with him and sitting or say talking with whom they are doing that type of work. But it will not help him. It will not make help him to develop. He will cannot get success, because up to how many time for a certain time only he will get that support from the upline. After that he have to do by his he also he have to do by himself only, because there will be no upline, because upline is also having something, because he cannot give maximum all the time to that one person only, because he say for a 6 diamond that I told that already 800 1 diamond he used to have under 6 diamond. So one 6 diamond leader can give to say on a per day. Say if he give one also, then also in 30 days he can give only to 30 leaders only he can give time. So it is difficult for that also. So that is the thing, and also I request this one also, that about that product also, that always you make the awareness, say about the product awareness, then automatically when awareness will come, then automatically the this one will come, automatically the demand will come, and when demand will come, then automatically our business will grow. Because if we first go and say if somebody is having any problem,
and then we say he's having some heart problem. If we go and just say that, oh, you are having heart problem, okay, you take our D-lipo, then certainly he will not believe you, because according to him, he is doing treatment for 5 years, 6 years, and he is not getting cured. And you came in one day and they saying that you take this, you will be get cured. Then he will listen to you, but he will never believe you, because normally if in his place I were there, I will not believe that one. So we should make them. That's why we are saying that we have to make them understand. We have to say them that why he is having the heart problem. Then actually our heart works like that. If you make him understand all the thing, then he automatically he will say that, yeah, this is the problem I'm getting from 5 years, but but allopathic doctors did not told me about it. So then he will only ask you that, is there any remedies with you that you can help me? Then you can say about D-lipo. Then automatically he will tell that, give me the D-lipo. So that way we have to make the demand. And that day also I told that we don't because we are not telling you, because many companies are saying that you do this business, you become salesman. Before there was there, we have to take product in our bags and then we have to go door to door, and then we have to sell product and then we have to do business. But nowadays, the direct selling company has become, all are doing smart work, and then we have to work smartly. That is the main thing. And then if we work smartly, then automatically our business will develop. So I think Chakrabarti sir is here with us. So sir, are you there? Or what are you, sir? Thank you, sir. Yes, Thank you. Thank you, Anjan sir. मेरा वीडियो को स्पॉटलाइट कीजिए तो फिर just spotlight my video to just click that option of spotlight video. Yes, sir. Spotlight में है. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Good morning. Salam alaikum. Sat Shri Akal. Welcome all our dear leaders. सबको प्रणाम, हार्दिक स्वागत है और सबको बहुत वेलकम, राइट? तो सब लोग ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं, चल रहा है, घिसट रहा है. How it's going? Today we have English session, right, Anjan sir? We are in English session, correct? Okay, so I'll mix it up in English and Yes. Okay, fine. Thank you. Okay, so I think still people are joining, Anjan sir. Okay, let people join. I'm going to start my part. Okay, so I thought I want to talk about a very important topic today. जो अभी तक बात नहीं हुआ about that topic, we didn't have a program yet. I had the program, I think in the month of May, once in the very special course. But since May, June, July, August, we didn't have this. I didn't discuss about this topic. So I think there is a lot of new people who have now joined, who that time didn't join the audience, who were not part of our programs. So I thought I want to discuss about this. What is actually nutraceutical and how does Orient's nutraceutical work inside our body? So this is going to be a very important thing for you. In what regards? You see, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलूं या सिर्फ इंग्लिश में बोलूं? फिर बाद में मुझे नहीं बोलना चाहिए सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी बोलें, बीच में नहीं कोई लिखना चाहिए. You tell me what do you want? You want me to speak only in English or you want me to mix it up? क्योंकि होता है कि मैं अगर मिक्स बोल रहा हूँ तो मैं उस पैटर्न में बोलूंगा, इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उस पैटर्न में बोलूंगा. जो मेजोरिटी बोलेगा मैं वो करूंगा. हिंदुस्तान में रहता हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां से ज्यादा वोट मिलेगा वो सरकार चलता है. मिक्स का सरकार होगा या इंग्लिश का सरकार होगा, देखते हैं. मिक्स कीजिए. ओके, गुड, आई विल डू दैट. हिंदी में, सिर्फ हिंदी में तो नहीं होगा, मिक्स या इंग्लिश. सिर्फ हिंदी में नहीं होगा, मिक्स होगा या इंग्लिश होगा. ओके, ग्रेट. मतलब मैक्सिमम लोग हिंदी भी सुनना पसंद करेंगे इंग्लिश के साथ. एक्चुअली आई टेल यू, इंग्लिश ऑफ कोर्स हम में से बहुत लोगों को इंग्लिश बोलना आता है. यू नो, आई स्टडीड अब्रॉड. I studied in CBSE board in Kolkata. Then I went abroad to study my medicine. So bahari doctor पढ़ाई किया. Then I did also some special studies and courses and training in foreign countries only. So I speak Russian fluently, German थोड़ा, Spanish थोड़ा समझ में आता है.
हिंदी इंग्लिश तो आपको समझ में आता है, बंगाली मेरा मदर टंग है, नेपाली मुझे पूरा समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, अरबिक मुझे समझ में आता है, 5-10% बोल सकता हूँ। फिर भी मेरा सबसे फेवरेट लैंग्वेज हिंदी है। मुझे हिंदी बोलना सबसे अच्छा लगता है, और मैं कोई भी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, आपने शायद बहुत बार मेरा वीडियो देखा होगा, फिलीपींस में गया ऑफिस ओपनिंग किया, मलेशिया में गया, ओरेंज की तरफ से दुबई गया, जो बहुत जगह जाता हूँ, एवरीवेयर आई गो, सबसे पहले मैं लोगों को नमस्कार करता हूँ फॉरेन कंट्री में जाके। अगर व्हेन आई गो टू जर्मनी एंड आई मीट लीडर्स और ऑफ अदर कंट्री पीपल, आई यूज्ड टू डू दैट नमस्कार, राइट। आई मैं जाके हैंडशेक नहीं करता हूँ सीधा डायरेक्ट, पहले सबसे बड़ा नमस्कार करता हूँ। सो समटाइम्स मैं ये बोलने का एक कारण है, आप मैक्सिमम नेपाल से या इंडिया से है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। सो आई यूज्ड टू गो एंड डू लाइक दिस नमस्कार। मैं गल्फ में भी जाता था नमस्कार, अगर मैं मलेशिया फिलीपींस फॉरेन कंट्री में जाता था, आई यूज्ड टू डू लाइक दिस नमस्कार, देन ओके हाय। तो मुझे देख के बहुत सारे गोरे, गोरे मतलब द व्हाइट स्किन पीपल, नमस्कार डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर बोल के ऐसा टोन में बोलना शुरू करते थे, नमस्ते नमस्ते बोल के। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है। सो आई वेंट अराउंड इन जर्मनी अराउंड 9 times. So and 2 times I was only as like it on my personal thing, and 7 times I was in company programs. So went to France, Austria, Czech Republic, many European places, the Malaysia, Philippines, very often I used to go. जहाँ पे भी जाता था ऐसा करता था, पहले सबसे पहले ऐसा। एंड वो चीज सबको अच्छा लगा। एंड इवन द व्हाइट पीपल, द मंगोलाइट पीपल, राइट, नाउअडेज, ये नाउअडेज का नहीं, ये मैडम 6 महीने 1 साल 2 साल पहले का बात है, जब से मैं अपना कैरियर शुरू किया। सो ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो वन और द अदर फॉरेन कंट्री। सो आई यूज्ड टू से लाइक दिस। सो व्हेनेवर आई एम एनी आउटसाइड प्लेसेस, चाहे मेरे सामने यूरोपियंस हो, अमेरिकन्स हो, रशियंस हो, अरब्स हो, चाइनीज हो, मलेशियंस हो, कोई कहीं से भी हो, इंडियंस हो, आई यूज्ड टू डू लाइक दिस। उसके बाद ऑफ कोर्स हैंडशेक, अगर ऑफ कोर्स हैंडशेक करता, लेकिन फर्स्ट आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस, ग्रीट लाइक दिस। एंड why I'm saying you this is that this is our root, right? This is our root. So if we don't forget our root, we'll always have a great fruit. इस चीज को याद रखिए। If we don't forget our root, we'll always have a great fruit. If we forget our root, forget also about the fruit, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। बात समझ पा रहे? मैं कुछ बोलने का कोशिश करो इनडायरेक्टली। तो मैं होता है ना, मैं सांप का पूंछ पकड़ता हूँ, आपको पता है मैं सांप का मुंडी नहीं पकड़ता उससे जाके। So if we don't forget our root, we will have a very good fruit. But if we forget our root, forget also about the fruit. भूल जाइए fruit के बारे में, भी root को भूलते हैं। So अक्सर ऐसा होता है, certain attitude of yours, certain philosophy of yours, certain things of yours लोगों को influence करते हैं और लोग उसको follow करते हैं। So I'll tell you this incident is that I was there in Frankfurt. Frankfurt, Germany का एक बहुत बड़ा सिटी है, शायद आप में से बहुत लोग सुने होंगे, तो गए भी होंगे। It has a very big airport and the city is fantastic. Frankfurt is one of the most decorated city in the Europe. पूरे यूरोप में सबसे बेहतरीन सिटी में फ्रैंकफर्ट आता है। कैपिटल जर्मनी का बर्लिन है, और उसका वन ऑफ द बेस्ट सिटीज में फ्रैंकफर्ट। आप बोल सकते हैं बर्लिन दिल्ली है और फ्रैंकफर्ट मुंबई है, इकोनॉमिक कैपिटल। एंड आपको पता है जर्मनी जाना मतलब लोगों के लिए एक वो होता है, चांद जाना ऐसा बात होता है, वाह जर्मनी, वाह ऐसा बात होता है। So I was there in a party, मतलब मैं जब जहाँ पे पहले काम करता था, so I was there in a party, means after the program there was a celebration party. तो वहाँ पे बुफे डिनर था, वाइन भी था। वो तो आप पता है बाहर कंट्री में बहुत नेचुरल है, हमारे कंट्री में भी आजकल नेचुरल है। So there was a buffet dinner, there was wine. So it happened so कि कुछ लीडर्स मुझे जानते थे, वहाँ पे वर्ल्ड कन्वेंशन था। So from around 46 countries including India, leaders came, who are achievers, they came from 46 countries. जापान से थे, चाइना से थे, मलेशिया से, फिलीपींस में, ऑल ओवर यूरोप से थे, गल्फ से थे, नाइजीरिया, घाना, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, अलग अलग अफ्रीकन कंट्री से भी थे, ब्राजील फसिल से भी थे। सो मुझे तो जानते थे सब लोग, लेकिन सबको डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं जानता था, क्योंकि मेरे यूट्यूब में लोग वीडियो देखते थे, मेरा ट्रेनिंग का पे देखा होगा, ओ हाय डॉक्टर तथागत ऐसे बोलते थे। डॉक्टर चक्रवर्ती प्रोनाउंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, डॉक्टर तथागत ऐसे टोन में बात करते थे। जहाँ भी मिलता था मैं ऐसा करता था। उनको तो पता है ये तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी पहले नमस्कार करता है, और ऐसा हमारा ट्रेडिशन है, दे नो इट, होल वर्ल्ड नोज इट, बट मेनी पीपल डोंट डू इट, बट जानते सब लोग हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो ऐसा हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, डूइंग लाइक नमस्कार, उनको पता है ये उनका ट्रेडिशन में आते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो गया, इट वेंट वायरल।
हर कोई गोरा मेरे साथ अगर मिलता था कि नमस्ते बोल के ऐसा करता था, ऐसा करके खुद आके ऐसे करता था। पहले पहले हैंडशेक करता था और मैं ऐसा भी करता था, हैंडशेक भी करता था, उसके बाद वो लोग डायरेक्ट आके मेरे से ऐसा करता था। एंड अब मैं और आपको मनोरंजन वाला बात बोलता हूँ, which was an influential thing. So sometimes you can influence others' action if you do your action very well. So देखिए हिंदुस्तानी लोग हम लोग हाथ से खाते हैं. Maximum people of us we eat by hand. Of course चम्मच से भी खाते, but कुछ चीजें होते हैं हाथ से खाते हैं और मुझे हाथ से खाना बहुत पसंद है. Even I go to foreign country also I will eat by hand. अगर वो चम्मच और आटा से खाने वाला चीज नहीं तो हाथ से खाना है. उसमें शो ऑफ करके अंग्रेज जैसा ऐसा ऐसा करके तो खाने लायक ही नहीं रहेगा, है ना. तो अंग्रेज तो है नहीं, और अंग्रेज गए तो उनको भगा भी दिया हमने देश, तो they are not there. So अब मैं जा था, I was eating by hand, buffet dinner था, I was eating by hand. सब लोग देख रहे हैं, हाँ उनको पता है इंडियंस लोग हाथ से खाते हैं. सुना होगा कभी कोई इंडिया में आया होगा एज अ टूरिस्ट, कभी किसी ने नेट में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, मैं कहीं ना कहीं देखा होगा और सुना होगा, हाँ इंडियंस हाथ से खाते हैं. सो मैं हाथ से, दिस इज अ रूट सिस्टम, करेक्ट. तो मैं हाथ से आई स्टार्टेड इट बाय हैंड. आई एम ईटिंग बाय हैंड कंफर्टेबली. आई एम ईटिंग कुछ, अभी सूप है तो उसको तो उससे क्या बोलते हैं, स्पून, सूप स्पून से पी रहे हैं. नूडल्स है तो उसको तो हाथ से नहीं खा सकते. अभी वहाँ पे एक ब्रेड टाइप का चीज है तो उसको हाथ से तोड़ के खाएंगे. अंग्रेज थोड़ी कांटा से काटा, फोर्क से दबाया और खाया, वो तो मजा भी नहीं आएगा खाने में. सो देवर कोई आके पूछा, ये जो आप हाथ से खाते हैं ये आपका कल्चर में है, ये तो हम जानते हैं, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? मुझे पूछा, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? बिकॉज यू आर मेडिकल डॉक्टर, आप तो साइंटिफिक बोर्ड में भी है, तो आप शायद कुछ सिग्निफिकेंस जानते हैं. तो एक फ्रेंच था, वो ही वाज फ्रेंच, वन वो हमारे कंपनी का एक अचीवर लीडर था, एंड ही वाज अ फ्रेंच गाय. इंग्लिश में आके मेरे से पूछा, मैं बोला यस है. तो जब मैं उसको बोलने लगा और 2-3 खड़े थे, वो 2-3 ने बाकी को बुलाना शुरू किया, ए सुन सुन, हाथ से खाने वाले का, हाथ से खाना, जो खाना खाने का चीज है ना, उसके पीछे एक साइंस है. कम कम सब लोग जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश में, रशियन में बोलते बोलते अपने अपने लोगों को बुलाने लगे. मैं उनको बोला कि आज से बहुत हजारों साल पहले देयर वाज नो स्पून एंड फॉर्क, प्लेट भी ठीक ठाक नहीं होता था, लोग हाथ से खाते थे. उस टाइम लोग हाथ से खाते थे, हेल्दी ज्यादा रहते थे, और जब से स्पून फॉर्क से खाना शुरू किया, अनहेल्दी ज्यादा होना शुरू किया. तो उसने बोला यस दैट्स करेक्ट, ये तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है, ये तो हिस्ट्री बोलता है, ज्योग्राफी बोलता है, एंड इट्स रियली हैपेंड. टुवर्ड्स द साइंस बिहाइंड इट. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, ये मैं आपको एक साइंस बोल रहा हूँ, दिस इज द, यू कैन से द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट. व्हेन यू ईट बाय हैंड, not everything is not possible to eat by hand, but certain things which is meant to eat by hand, जब आप उस खाने को छू रहे हैं, लेट्स से रोटी है, ओके जस्ट थिंक लाइक दिस, या चावल है, आप उस रोटी को तो ऐसे तोड़ रहे हैं, या ब्रेड को ऐसे तोड़ रहे हैं, पूरा रोटी तो मुंह में नहीं डाल सकते, तोड़ रहे हैं. हमारे बॉडी के अंदर, वी इनसाइड आवर बॉडी वी हैव रेस, हीट रेस. आपको भी पता है हमारे बॉडी के अंदर हीट रेस है, वी आर वार्म ब्लडेड. सो हर किसी के बॉडी से रेस, मतलब किरणें निकलते हैं, हीट रेस. एंड राइट, I don't feel if I eat spoon, I also don't feel, but you, all of you know that we have certain heat rays coming out of your body. आप देखिए ना, आप अगर एक चेयर में बैठे, जिसमें चेयर में बैठा, आप एक चेयर में बैठे, आप चेयर से उठ के चले जाइए, इमीडिएटली कोई आके उस पर बैठेगा तो उसको गर्म फील होगा, चेयर गर्म हो जाएगा, बिकॉज हम हीट रेस निकाल रहे. आप पीठ लगा के बैठिए आधा घंटा, छोड़िए, वो जगह गर्म हो जाएगा, बिकॉज देयर इज द हीट रेस. हमारे बॉडी से निकलते हैं हीट रेस, एंड दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेस. हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वार्मथ क्रिएट होता है बॉडी में, हीट, और वो हीट रेस बाहर निकलता है प्रॉक्सिमिटी तक. अक्सर ऐसा होता है, आप कोई खाने को छू रहे हैं, रोटी को छू रहे हैं, राइट, यस सर, आई फील एवरीवन वी विल फील दैट हमारे बॉडी से हीट रेस निकलते हैं. आपको प्रूफ चाहिए तो आप एक चेयर में बैठिए, और चेयर में आप आधा घंटा बैठने के बाद उठ जाइए. चेयर से आधा घंटा बैठने के बाद आप उठ जाइए, आप देखिए तो चेयर गर्म होता है नहीं होता है, राइट, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड. अब जब आप एक रोटी को तोड़ रहे हैं, ध्यान से सोचिए, ध्यान सुनिए, that when you're breaking that roti, right, and then you're going to dip it in a dal or chicken curry or paneer or कुछ भी, what is happening, ये जो आपके हाथ से जो रेस निकल रहे हैं, और हाथ का रेस सबसे गर्म होगा, याद कीजिएगा, हाथ का रेस सबसे गर्म होगा, क्योंकि ब्लड आके यहाँ पे खत्म आ रहा है, नर्व्स आके भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, और आपके पैरों के नीचे, इन द टोस. So when you're touching that roti, you know, you're holding it for some time. अगर उस रोटी में फाइनली भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब समझते हैं ना, जीवाणु, जीवाणु क्या बोलते हैं, कीटाणु, जीवाणु क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोब्स, हिंदी वर्ड नहीं आ रही ना, माइक्रोब्स मतलब जो हानिकारक हो सकते हैं, जीवाणु कीटाणु जो डेटॉल के ऐड में नहीं बोलते हैं,
अगर वो फाइनल कुछ है भी उसमें, देयर इज समथिंग देयर आल्सो, जो एकदम जिसका पावर बहुत कम है, बहुत कम पावर का है कीटाणु, राइट, जिसका बहुत बहुत कम पावर है, मतलब वो ऐसा आके सीधा आपको मार नहीं सकता है, बट बहुत बार जाने के बाद वो खराब कर सकते हैं। आप जब उसको रोटी से छू रहे हैं, रोटी को छू रहे हैं हाथ से, और हाथ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहे हैं, जो आपका हाथ का हीट रेज है वो ऑटोमेटिक फाइनल स्टेज में भी एक क्लींजिंग करता है। मतलब आप मुंह में तो ले लेंगे उस माइक्रोब्स को, बट वो मुर्दा माइक्रोब्स होगा, अब जाके वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो आप ढूंढ नहीं सकते माइक्रोस्कोप से माइक्रोब्स कहाँ पे, ऐसे करके वो माइक्रोब्स आपके पेट में जाएगा उस रोटी से, बट वो जाके और कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज उसका गेम खत्म वहां पे खत्म जब आपने छुआ, अपने 10 सेकंड 20 सेकंड छुआ ना, जो हीट रेस गया, वो हीट लेने का पावर उसके पास नहीं है। और पर्टिकुलरली ये काम, ये साइंस काम में तब आता है जब आपका रोटी थोड़ा ठंडा हो गया। एकदम गर्म रोटी में माइक्रोब नहीं जी सकते तो मर जाएगा, लेकिन जब ठंडा होना शुरू किया, हवा में बहुत माइक्रोब्स है अराउंड यू, इवन आपका घर सबसे साफ है ना, तो भी आपके घर में कीटाणु जीवाणु है जो आप देख नहीं सकते, राइट, लेकिन दे विल लिव इन अ लिटिल कूल इन्वायरमेंट। एकदम अगर उसको आपने हीट प्रोडक्शन किया, वो नहीं रह सकता, और बॉडी के हीट के सामने वो नहीं रह सकता। तो आपका रोटी पड़ा हुआ है, आप 5 मिनट बाद खाने के लिए आए, ये चावल को 5 मिनट बाद खाने के लिए आए, वो थोड़ा हल्का हो गया ठंडा, एकदम ठंडा भी नहीं हो गया, उसका गर्माहट एकदम गर्म नहीं है, थोड़ा कम हो गया, मतलब उसका गर्माहट आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम हो गया। देयर इज अ हाई चांस कि माइक्रोब्स उसके अंदर आके बैठ सकते हैं जो हवा में घूम रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्स को भी कुछ चाहिए जीने के लिए। और रोटी बोली या चावल बोलिए, दे आर लिविंग थिंग्स, मतलब वो तो जिंदा चीज है, दे केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो दे हैव ऑक्सीजन इनसाइड, वरना तो कैसे पैदा हुए हैं? दैट्स व्हीट, दिस मेज, राइस, दिस आर हैविंग ऑक्सीजन, सो वो जिंदा पैदा हुए, दे आर जिंदा, दे आर हैविंग ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई यू आर ईटिंग। चिकन खा रहे हो, उसमें भी ऑक्सीजन है, वरना वो कैसे होगा? आप एक बैंगन खा रहे हो, उसमें भी ऑक्सीजन है, बिकॉज दिस आर ऑल कमिंग फ्रॉम द नेचर, दे केम फ्रॉम द सॉइल, दे केम बाय द बर्थ ऑफ नेचर। सो जब आप वो हाथ को छू के बैठे ना, कुछ टाइम जैसे आप बैठे, इवन 10 सेकंड का चक्कर है, बट 90% चांस है कि जो जीवाणु कीटाणु शायद नहीं मरते थे फॉर्क छूने से या चम्मच छूने से, उस टाइम वो मरने वाला है। क्योंकि अगर आप चम्मच और फॉर्क से छूते तो ठंडा है, प्लस वो मेटल है, प्लस उसमें ऑक्सीजन नहीं है। बात को समझिए, वो ठंडा है आपका फॉर्क या चम्मच हो तो गर्म करके तो आप नहीं छू रहे, प्लस उसमें वो मेटल है, थर्ड उसमें ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता। सो इट मीन्स वो छू के आप जो ले रहे हैं, इट कैन नॉट एक्चुअली किल दोज माइक्रोब्स, फाइनल स्टेज ऑफ क्लीनिंग वो नहीं कर सकते। बट इसको मैं बोलता हूँ वार्मथ क्लीनिंग। वार्मथ क्लीनिंग मतलब गर्माहट दे, साफ गर्माहट दे के जीवाणु को फाइनल स्टेज में इराडिकेट करना। वो गर्माहट तो हम पकाने के टाइम करते हैं, बट पकाने के बाद भी खाना थोड़ा 5 मिनट के लिए तो कूल डाउन होता है, दैट्स द टाइम बहुत माइक्रोब अटैक करते हैं। याद कीजिएगा, बहुत माइक्रोब उस टाइम अटैक करते हैं। कभी कोई मेडिकल वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब का मेडिकल चैनल्स में भी आप देख सकते हैं, माइक्रोब जाके अटैक करते हैं और माइक्रोब जाके बैठ जाते हैं। हम उसको खाते हैं, ऐसा कुछ खास हानि नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के पास पावर है ऐसे कीटाणु को साथ लड़ने के लिए। दे विल नॉट बी किलिंग अस, बट व्हाई नॉट टू प्रिवेंट अस। मैं ये बोल रहा हूँ वो माइक्रोब्स आके नहीं मारेगा हमें, बट क्यों ना हम उनको पहले मार दें, ताकि वो आके उनका कोई चांस ही ना हो हमें मारने के लिए। तो सेकंड साइंस एक साइंस था ये प्रोटेक्शन में। सेकंड साइंस है दैट अगर कोई, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज ये ट्राई कीजिए घर में। अभी देखिए, अभी शायद नेपाल में मुझे पता थोड़ा लंच जल्दी करते हैं, इंडिया में थोड़ा लंच बाद में करते हैं, तो चलिए आज अगर नहीं हो तो अच्छा ये ट्राई कीजिए। अभी आप अगर दोपहर का लंच आपने नहीं किया तो दोपहर में चावल या रोटी कुछ खाते, और रात को भी आप चावल रोटी कुछ खाते। एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ। आप दोपहर को चावल को इससे खाइए, स्पून से, और रात को चावल को आप हाथ से खाइए। In the daytime, have the rice by spoon. In the night time, have the rice by hand. आपको एक चीज फीलिंग होगा, अब दोपहर को जब आप स्पून से खाएंगे, दाल डाल के, चिकन करी डाल के, पनीर डाल के, कुछ भी डाल के, अब जो स्पून से दोपहर को राइस को खाएंगे, आपको पूरा दिन अगर आपने किन किन लोगों ने किया है, मुझे कल जरूर रिमाइंड कीजिएगा। सर आपने जो एक्सपेरिमेंट बोला था चम्मच और हाथ से खाने का, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप बताइए ऐसा क्यों हुआ,
राइट, मुझे दो चम्मच से खाए तो आई फेल्ट दैट हेवीनेस एंड ब्लोटिंग, but when I had ate by hand, I didn't feel in the morning or in the late night the heaviness or bloating. आप पहले एक्सपेरिमेंट को कीजिए, खुद कीजिए, कल मैं जरूर बताऊं, मुझे रिमाइंड कीजिए, अगर मैं भूल भी गया बताने के लिए रिमाइंड कीजिए, मुझे फटाफट मैसेज डाल दीजिए कि सर ये आपने बताया, तो जब मैं एंट्री करूंगा तभी डालिए, बीच में डालने पे बहुत डिस्टर्ब होता है ना, तो आप एंट्री कीजिए, सर आपने कल जो एक्सपेरिमेंट बोला था आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हमने फील किया है, तब मैं आपको वो साइंस बताऊंगा। सो अब मैं आपको जर्मनी का बात पे आता हूँ। फाइनली व्हाट हैपेंड, आई मोस्टली ईट बाय हैंड सर, यस। तो आप एक बार आज ट्राई कीजिए अमित जी, है ना, कभी कभी अपने ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आप कीजिए। आप आज दोपहर को मैंने वो अगर क्या बोलते रोटी भी खाते तो उसको काटिए और फॉर्क से दोनों स्टेज का अनुभव किया है, फॉर्क से उसको चुबा चुबा के खाइए, और चावल खाते हैं तो उसको स्पून से खाइए और हाथ को हाथ से खाइए। आप खा के देखिए और क्या फीलिंग होता है उसके बाद देखिए, यू आर गोइंग टू सी द फीलिंग, एंड आप काफी अजीब फील करेंगे, यार बिल्कुल सर ने जो बोला ऐसे ही फील कर रहे, वी आर फीलिंग सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल। खाया तो सेम अमाउंट ऑफ राइस, हो सकता है आपने रात को ज्यादा खाए दिन में कम खाए, लेकिन भारीपन दिन में खाने चम्मच से खाने के बाद ज्यादा हो रहे हैं। आई विल टेल यू द साइंस टुमारो, कल मैं बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर टॉपिक है, बट मैं ये आपको जो एक्सपेरिमेंट बोला, डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो अभी आपको हाथ के खाने के टॉपिक के ऊपर वापस जाता हूँ। सो आई वाज ईटिंग बाय हैंड एंड पीपल आर वाचिंग मी, सब लोग मुझे देख रहे थे, सब लोग मुझे जानते थे, हाँ ये हमारे डॉक्टर तथागत सर है, डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती हेड ऑफ ट्रेनिंग है फॉर मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, ये ट्रैवल करते रहता है, हर हफ्ते कोई अलग अलग कंट्री में और ट्रेनिंग देता है। तो मुझे पूछा, मैंने एक साइंस तो उसको पता है, जो साइंस आपको माइक्रोब्स का बोला, दूसरा भी जो साइंस था ये चम्मच हाथ से खाना वो भी बोला, तीसरा बोला ये मेरा कल्चर है और मुझे ये खाने से टेस्टी लगता है, ये खाने से चम्मच से खाने से टेस्टी नहीं लगता। हुआ कि सब लोग जब मेरा बात को सुना कि हाथ से खाने के एडवांटेज सर्टेन थिंग्स, तो सूप तो आप हाथ उठा के खा सकते, नॉट पॉसिबल, राइट, वो हाथ से खाने वाला चीज भी नहीं, चाउमीन भी आप हाथ से उठा के नहीं खा सकते, तो सर्टेन थिंग्स जो हाथ से खाना चाहिए हाथ से खाना चाहिए। तो ऐसा हुआ, वो लोग मेरा बात सुना, 10-15 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया, सब लोग पूरा कंट्री, अलग अलग कंट्री के लीडर्स लोग आके ऐसे ऐसे सुन रहे थे, oh yes yes okay that's very good, that's a new thing, हम लोग न्यू थिंग सीखा, we are learning a new thing, हम पहले कुछ नया चीज सीखा, that is very interesting, ऐसा ऐसा बोलने लगा। ओके फाइन, ट्राई कीजिए। हुआ ऐसा, जो मेरे साथ गोरे बैठे थे, है ना, गोरे और गोरिया बैठे थे, है ना, व्हाइट स्किन गर्ल्स एंड मेन जो भी मेरे साथ बैठे थे, वो लोग क्या किया दोस्तों, दे स्टार्टेड एक्चुअली ईटिंग बाय द हैंड। वो मेरे साथ बैठे थे एंड वो लोगों ने वो लोग सब क्या होने लगे कि दे स्टार्टेड ईटिंग बाय हैंड, जितने भी लोग थे वो लोग सब मेरे साथ, चलो ओके डॉग, डॉग मतलब वो लोग शॉर्ट में बोलते हैं, डॉग नहीं है, डॉग DOC, वो लोग सब बोलने लगे ओके डॉग लेट्स एक्सपेरिमेंट, लेट्स ट्राई, आई विल ईट बाय हैंड, आज हम लोग हाथ से खाते हैं, वी विल ईट बाय हैंड, ऐसा बोलने लगा। ओके ओके ग्रेट, तो सब लोग हाथ से खाने लगे। अब मेरे टेबल में थे, बड़ा टेबल था, आई थिंक 12-13 लोग बैठ सकते थे, सारा राउंड टेबल था, सब लोग हाथ से खाने लगे। बाकी टेबल वाले भी देखने लगे, वो भी देख के वो लोग अपने फ्रेंच जर्मन भाषा में रशियन भाषा में एक दूसरे को बात कर रहे थे, अरे तुम लोग आज इंडियन स्टाइल में खा रहे हो, हाँ हाँ इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे भी रिसर्च है, ऐसा वो लोग बोलने लगा अपना फ्रेंच जर्मन भाषा में। बाकी टेबल वाला भी क्या क्या सच में, अरे खा के देखो हम आपको सिखाएंगे, ये एक दूसरे को बोल रहे हैं। देख रहा बाजू वाला टेबल वाला में 12 अगर लोग थे, 4-5 हाथ से खा रहे, बाकी लोग नहीं खा रहे, 4-5 तो ओके आज ट्राई करते हैं, उनको देख के कोई और भी कर रहा है, उनको देख के कोई और भी कर रहा है, उनको देख के कोई और भी कर रहा है। इट वॉज अ विक्ट्री फॉर मी, कि मैंने सोचा अगर कोई भी चीज हम लोग करते, वो चीज को अगर बढ़िया तरीके से करते तो लोग आपको पूछताछ करेंगे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम को तुम क्यों कर रहे हो, और अगर उसको हम बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं कि मैं इसलिए इस काम को करता हूँ, और वो बढ़िया समझाने वाला चीज उसको बढ़िया लग गया और उसको समझ में आ गया, ये तो बढ़िया कर रहा है और ये बढ़िया तरीके से कर रहा है, मतलब इसका रिजल्ट भी बढ़िया होगा, ऑपोजिट वाले को ये समझ में आ गया, तो 5 out of 10 मतलब 50% पीपल विल फॉलो यू रेडिली, ओके हम भी करके देखते हैं, और बाकी 50% people will not follow you directly but definitely will think about you all the time, सोच में पड़ जाएगा, सोच में पड़ेगा तो विचार करेगा, विचार करेगा तो आचार करेगा,
आचार करेगा तो फाइनली वो बिजनेस में आचार डालेगा, मतलब आचार डालेगा मतलब वो टेस्टी है, मतलब खाने वाली चीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो मैं जो ये आपको जर्मनी का स्टोरी बोला, हाथ से खाने का स्टोरी बोला, इसके पीछे एक ही मेरा बोलने का मकसद था दैट अगर आप कोई चीज को बहुत श्योरली करते हो, मैं इस चीज को बहुत श्योरली करता हूँ क्योंकि हाथ से खाना मुझे साइंटिफिक रीजन पता है, मुझे कल्चरल रीजन पता है और मुझे इमोशनल रीजन पता है, राइट। सो मैं 3 रीजन बोला आपको हाथ से खाने का, चाहे हिंदुस्तानी हो या नेपाल से हो, हम लोग बहुत सिमिलर कल्चर रखते हैं। सो मैंने आपको 3 रीजन बोला, साइंटिफिक, राइट, इमोशनल एंड कल्चरल। सो आई love all these 3 reasons, right? And I do it. You also do it. So agar if you're doing something new or you're doing something old for a long period of time and others around you and they are not doing it but you are doing it very well, आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बहुत निष्ठा के साथ कर रहे हो, निष्ठा के साथ, मतलब with a big dedication, with a love and dedication उस चीज को आप really कर रहे हो और आप खुद कर रहे हो, लोग देख रहे हैं लेकिन किसी को खींच नहीं रहे हो, भाई तू भी कर, अरे भाई तू भी कर, अरे भाई तू भी कर, मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, भाई कर ये बहुत बढ़िया है, तू कर। ऐसा बोलोगे तो लोगों को बढ़िया नहीं लगेगा। अगर मैं सबको जाके वहाँ पे टेबल्स में बोलता था, मेरे टेबल में जितने बने, वाह गाइस व्हाई यू आर नॉट ईटिंग बाय हैंड, अगर मैं ऐसा बोलना शुरू करता, गाइस व्हाई यू आर नॉट ईटिंग बाय हैंड, यू नो ईटिंग बाय हैंड इज द बेस्ट थिंग फॉर आवर हेल्थ, ईटिंग बाय हैंड इज द बेस्ट कल्चर, कोई फॉलो नहीं करता था गोरा, वो बोलता था साला इंडिया से आके मुझे सिखा रहा है, ऐसा वाला बात हो जाता था। देखिए पूरा दुनिया में वो इंडिया नेपाल मतलब वो नीचे ही देखता है हमें उनसे ऊपर तो नहीं देखता, वो आपको ही पता है, उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा साइंस है, टेक्नोलॉजी, रंग भी थोड़ा गोरा है, हमारा रंग काला काला है, तो हमें नीचे ही देखते हैं। वो जितना भी हमारा कंट्री डेवलप तो दे लुक अस डाउन, तो वो सोचता था वो ये इंडिया से आके ये हमारे सर पे चढ़ रहे हैं क्या, हमें सिखा रहे हैं क्या, राइट। ऊपर से गोरे के कंपनी में काम करता था तो और गोरों से साथ काम करता था, तो उल्टा सोचेंगे लोग। सो मैं अगर उनको बोलूं भाई या यू गाइस डोंट नो, you know, this is the best way of eating, this is good health and you don't have the right way of eating by spoon and fork is not good, it's not good culture, कोई भी मेरा बात नहीं मानता था, उल्टा मेरे को क्रिटिसाइज करता था, ये हाथ से खाता है गंवार हिंदुस्तानी, ऐसा बोलता था, है ना, इट्स विलेजर इंडियन ऐसा बोलता था, बैकडेटेड इंडियन ऐसा बोलता था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इंडियन साइंटिफिक वे ऑफ ईटिंग, नाम हो गया इंडियन साइंटिफिक वे ऑफ ईटिंग। तो देखिए उस चीज को, कोई भी चीज को आप करते जो बाकी लोग नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि सब लोग वो करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी चीज को करते जो बाकी लोग नहीं करते आपके आसपास में, लेकिन आप चाहते हैं आपके आसपास वाले सब वो काम करें, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं बट आप कर रहे हैं, इसको निष्ठा के साथ करना है, एकदम निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ, ट्रेमेंडस डेडिकेशन के साथ उसको करना है, वेरी हाई ऑनेस्टी के साथ करना है एंड रीजनिंग के साथ करना है। याद कीजिएगा मैं तीसरा जो शब्द बोला ना वो सबसे पावरफुल शब्द है, रीजनिंग के साथ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रीजनिंग? यू शुड नो द रीजन व्हाई यू आर डूइंग इट, डोंट डू एनीथिंग विदाउट रीजन। अगर ऑरेंज भी कर रहे यू शुड हैव द रीजनिंग, प्रोडक्ट भी खा रहे यू शुड हैव द रीजनिंग, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे यू शुड हैव रीजनिंग, फील्ड में जाके काम कर यू शुड हैव द रीजनिंग व्हाई आई एम डूइंग इट, why I am doing it, why this is a good work for me, why this will give me good achievement, why this will give me good career. So you do it with the reasoning. So अगर आपके पास डेडिकेशन हो, रीजनिंग हो, लॉजिक हो एंड ऑनेस्टी, आप उसको करते जाइए, किसी को फोर्स मत कीजिए कि भाई तू भी कर, लोग करेंगे नहीं। लेकिन आप अगर कॉन्स्टेंटली इस चारों चीज के साथ कोई चीज को करते जाते, चारों फैक्टर्स के साथ, what will happen at certain point of time, people are going to come and ask you or at least they're going to talk about you. Either वो आपको आके पूछेंगे या तो आपके बारे में बातचीत करेंगे। पहली बार हो सकता है नेगेटिव बातचीत करें आपस में, आपको नेगेटिव नहीं पूछेंगे और आपस में नेगेटिव बातचीत करें, पता नहीं क्या कर रहा है, अरे यार कहाँ भटक गया, क्या कर रहा है, बट उसको और करते जाइए। आपको भरोसा है ना, आपको अपने वाई का आंसर मिल गया ना, रीजन है ना आपके पास करने के लिए, आपको सही लगता है ना, करते जाइए, सही तरीके में करते जाइए, किसी को बुलाइए मत, खींचिए मत, जस्ट कीप ऑन डूइंग। पहली बार वो लोग आपके ऊपर थोड़ा सा खिल्ली भी उठा सकते हैं आपस में और ये नेगेटिव भी बोल सकते हैं। दूसरी बार क्या होगा, दिस इज ह्यूमन नेचर, दूसरी बार क्या होगा दोस्तों, मे बी आफ्टर मंथ्स टाइम वही लोग आपस में अब सवाल पूछने लगेंगे एक दूसरे को। पहली बार क्या बोल रहे थे, अरे यार कहाँ फंस गया, अरे क्या काम कर रहे हैं, अरे इसमें कुछ नहीं होने वाला, अरे पागल हो गया है, अरे देखो यार बैग लेके घूम रहा है। पहली बार ये बोल रहा था वो लोग, लेकिन आफ्टर 1 month टाइम वो आपस में ये बात करेंगे, क्या काम करते हैं पता नहीं यार, काम तो करता है अच्छा खासा,
कमाई भी तो देख रहा हूँ उनका होते हुए, बिजी बिजी भी रहता है, काफी डेवलपमेंट भी है, पता नहीं क्या काम करता है। देखिए टोन बदल गया। पहले पहले में वो आपको क्या डिक्लेयर कर रहा था आपस में, यू आर अ फेलियर, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। फर्स्ट टाइम दे आर डिक्लेयरिंग अमंग अबाउट यू, उन्होंने आपके लिए डिसाइड कर लिया, प्री डिसाइड कर लिया कि यू आर अ फेलियर एंड यू आर डूइंग अ फालतू थिंग एंड यू आर गोइंग इन द रॉन्ग पाथ। आप कोई बेकार काम कर रहे हो, उन्होंने पहली बार आपके लिए डिसाइड कर लिया था, लेकिन 1 मंथ बाद अब आपके लिए सवाल उठा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है 2-3 महीने बाद अब आपके आके आपको पूछताछ करने लगे, आपको क्वेश्चन पूछने लगे, आपसे इंटरेक्ट करने लगे, क्योंकि वो एक चीज, बाकी सब लोग एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो आप करते जा रहे हो, लेफ्ट राइट ना देख के, अब जो कर रहे हो करते जा रहे हो। तो आपने बोला, आपने मेरा बात सुना, लेफ्ट राइट ना देख के आप जो है वो करते जा रहे हो। साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे, लीडर्स नहीं सुन पा रहे? Yes, are you able to hear me? ओके, तो यू आर एबल टू हेयर मी, तो आप क्यों लिख रहे हैं साउंड बोल के? काइंडली आप लोग अपना ना, ये अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, दो में से एक कीजिए, अगर अपना नेटवर्क चेक कीजिए या तो जाके एक ऑडियोग्राम टेस्ट कराइए, क्योंकि मैं काफी लाउड वॉइस में बोलता हूँ, और अगर सबको सुनाई दे रहा है तो आपको नहीं सुनाई दे रहा, तो या तो आपका नेटवर्क खरा है या तो ऑडियोग्राम जाके प्लीज एक बार चेक कीजिए, ऑडियोग्राम, यू नो ईयर हियरिंग टेस्ट उसको बोलते हैं ऑडियोग्राम, वो जाके एक बार जरूर टेस्ट कराइए इफ यू नॉट एबल टू स्टिल हियर राइट लाउड एंड क्लियर साइट। सो काइंड मतलब ऑडियोग्राम टेस्ट कराइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दे रहे हैं, सो गो एंड टेस्ट विद ऑडियोग्राम, है ना, हियरिंग टेस्ट, कि क्यों नहीं सुनाई दे रहा बोल के, राइट। अगर नेटवर्क ठीक ठाक है तो भी नहीं सुनाई दे रहा तो ऑडियोग्राम कीजिए, या तो पहले नेटवर्क चेक कीजिए बिफोर जस्ट सेइंग साउंड, सडनली इंटरप्ट साउंड। एक्चुअली ये दिस इज अ प्रॉब्लम वी हैव। मैं बोला खुद के बॉडी में बदबू है, लेकिन दूसरे का सूंघने के लिए गया है, बदबू कहाँ से आ रहा है, वो वाला बात हिंदुस्तान में और नेपाल में ज्यादा चलता है ना। बहुत बदबू आता है, वो नहीं सूंघता है आदमी, लेकिन दूसरे का सूंघने के लिए बदबू आ कहाँ से रहा है भाई, तेल तू देख, तेरा वहां से आ रहा है, तू जाके नहा या अच्छा परफ्यूम लगा, राइट, वो तू कर पहले। राइट है ना, मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ बट ये सच है, पहले अपना सूंघो, अपने आप को साफ करो, दूसरे का ना सूंघ के भाई किससे बदबू आ रहा है। सो I'll come back to the topic is that uh, okay, thank you so much मुजीब सर। सो आप पहली महीने में आपने जब शुरू किया, they were pre-judging you that you are going to fail। क्या क्या प्री जज कर रहे थे आपके बारे में, दैट यू आर गोइंग टू फेल, आप फेल करने वाले हो, वो उन्होंने आपके लिए डिसाइड कर लिया। आप गलत कर रहे हो, वो भी आपके लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप छोड़ दोगे 2-3 महीने बाद, वो भी आपके लिए उसने डिसाइड कर दिया। क्या क्या डिसाइड कर दिया, देखिए आपके अगर 20-25 कॉन्टैक्ट्स है, आस पड़ोस वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा के दोस्त हैं, या ना आपकी बीवी के दोस्त है या हस्बैंड के दोस्त है, वो सब ने आपके लिए एक चीज डिसाइड कर लिया कि भाई ये 2-3 महीने बाद छोड़ने वाला है, ये 2-3 महीने में फेल होने वाला है, और जो कर रहा है वो एकदम घटिया और गलत काम है, ये कोई काम का चीज नहीं है। दे हैव डिसाइडेड, नो प्रॉब्लम। उनका फंडामेंटल राइट है, हिंदुस्तान एक स्वतंत्रता देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी किसी के बारे में कुछ सोच सकता है। बस मोदी जी ने जीएसटी सोचने के ऊपर नहीं बोला है, नहीं लगा है, और फालतू बातों पे भी नहीं लगा है। अगर उसमें जीएसटी लगा दी तो लोग बोले सोचना बंद कर देंगे। अब उसके लिए आप एक मशीन लगाना पड़ेगा, कौन क्या सोच रहा है, गवर्नमेंट में टिंग 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 टैक्स डिपार्टमेंट में नोट हो रहा है, जीएसटी लग जाना चाहिए। वो तो नहीं होगा पॉसिबल, सो एनीबॉडी कैन थिंक एनीथिंग एंड एनीबॉडी कैन टॉक आल्सो एनीथिंग। तो ठीक है, वो लोग आपके ऊपर डिसाइड कर लिया, आप काम गलत कर रहे हो। अब एक काम नहीं है, आप छोड़ने भी वाले हो और आप फेल भी होने वाले हो, दे आर प्री डिसाइडेड। ओके फाइन, बट यू आर मूविंग अहेड। सो अब मैंने आपको एक बात बोला जहां पे इंटरप्ट किया गया मुझे, कि आप आगे बढ़ रहे हो लेफ्ट राइट ना देख के। तो मैं सोचा कि कोई मुझे क्वेश्चन करेगा, सर व्हाई नो लेफ्ट राइट, राइट, हम तो इंसान है, हम घोड़ा नहीं है। घोड़ा वो दौड़ने के टाइम लेफ्ट राइट नहीं देखता है, उसके ऊपर बांध दिया जाता है, बट इंसान लेफ्ट राइट देखते हैं, लेफ्ट राइट देखे चलते हैं। इसलिए देखिए, आप दाहिने देखेंगे, थोड़ा बाएं देखेंगे, कोई आके गाड़ी आके तो नहीं धक्का मार रहा है। आई टेल यू व्हाई। लेफ्ट राइट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू इन होल लाइफ। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं या कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, लीडरशिप इंडस्ट्री में काम करते हैं, इट विल रियली हेल्प यू। लेफ्ट राइट मैंने बोला, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट राइट ना देख के बस आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज 2 रीजन फॉर इट। वन रीजन इज लेफ्ट राइट मतलब दायां बायां, अच्छे बुरा, अच्छा बुरा,
क्या चल रहा या क्या है वो ना देख के आप सीधा बढ़ रहे हो, उसका एक कारण है। आई टोल्ड यू यू शुड डू अ थिंग विद डेडिकेशन, रीजनिंग। सेकेंड मैंने बात बोला था रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कारण है, क्या क्या कारण की वजह से। कारण मतलब लेफ्ट राइट। अगर वो चीज को आप पहले क्लियर करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा लेफ्ट राइट में क्या है या क्या हो सकता है, ताकि आपको लेफ्ट राइट ना मुड़ना हो, सीधा जाना हो। बिकॉज व्हेन यू आर टर्निंग लेफ्ट और राइट यू आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग स्ट्रेट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से बोल रहा हूँ। अगर सपोज आपको एक रास्ते में चलना है 1 किलोमीटर, तो अगर आप पहले से स्टडी कर लिए कि इस रास्ते में चलने के टाइम लेफ्ट राइट क्या क्या हो सकते हैं। राइट साइड में बहुत सारे लोग, वो भिखारी बैठा हो सकता है रोड में, भाई दे दो पैसा दे दो, ऐसा हो सकता है। लेफ्ट साइड में थोड़ा शोर शराबा हो सकता है। फिर आगे जाके एक राइट साइड में है ना, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा ग्राउंड में, बॉल फॉल आ सकता है। लेफ्ट साइड में कोई फुटबॉल खेल रहा है, बॉल फॉल आ सकता है। और आगे थोड़ा आगे जाते हुए लेफ्ट साइड में कुछ बदमाश बच्चे बैठे होते हैं, गाली गलौज देते हैं, वो आ सकता है। राइट साइड में जाने के टाइम कुछ बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। सो यू ऑलरेडी नो द रोड, यू स्टडीड द रोड and you are prepared. So when you are prepared to go like this, left right में कोई ना कोई कुछ बोलेगा, कोई ना कोई कुछ करेगा लेफ्ट राइट में, तो आपने पहले स्टडी किया है। इसको बोलते हैं एडवांस ट्रेनिंग। दो टाइप का ट्रेनिंग होता है। एक टाइप का ट्रेनिंग होता है जो बेसिक ट्रेनिंग है, एक बोलते हैं एडवांस ट्रेनिंग। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ दैट्स एडवांस ट्रेनिंग। मतलब आगे चल के क्या होगा, अभी आप चल रहे हैं तो क्या होगा, वो एक ट्रेनिंग है। बट आगे चलेंगे तो क्या क्या फेस करना होगा, उसको एडवांस ट्रेनिंग बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सो दैट इज व्हाट सम टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर मूविंग अहेड, आप ऑलरेडी आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड भी इतना एक्टिव है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में स्टोर हो रहा है क्या क्या हो सकता है। मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना हो सकते हैं, मुझे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, मेरे अपने भी मेरे को पढ़ाया बोल सकते हैं, लोग बहुत सारा कुछ पूछताछ कर सकते हैं, एंड आजू बाजू में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। सो दिस विल बी इन द लेफ्ट एंड राइट साइड। राइट, आपका जब मार्केटिंग प्लान में है ना लेफ्ट एंड राइट, तो आप सोचिए आपके रोड में भी लेफ्ट एंड राइट है। सो इफ यू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन, ध्यान से मेरे बात को सुनेगा। अगर आप शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले आपने पक्का स्टडी किया ऑडियंस को, या अपने कंपनी को, या अपने इंडस्ट्री को, या अपने प्रोडक्ट को, या अपने फ्यूचर को, आपने पक्का स्टडी किया, सच्चा स्टडी किया, डीप स्टडी किया, रीजनिंग स्टडी किया, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया। और मतलब आपको इतना क्लियर हो गया कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मैं जहां पे कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, और इस दोनों के लिए जो कर रहा हूं वो भी सही है, जहां कर रहा हूं वो भी सही, इसलिए मेरा जो रिजल्ट आएगा, मंजिल सक्सेस होगा, वो भी सही होगा। इफ यू क्लियर अबाउट इट, एंड अलोंग विद दैट लेफ्ट राइट में क्या क्या समय समय पे आ सकता है, लेफ्ट राइट में समय समय पे क्या आ सकते हैं, वो भी आपके पास अगर अच्छा नॉलेज हो, तो होगा क्या दोस्तों, आप जब सीधा चल रहे हैं ना, तो लेफ्ट राइट में जितना भी डिस्ट्रैक्शन आए आप मुड़ोगे नहीं, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब आने वाला है। यू ऑलरेडी नो दिस इज ऑल गोइंग टू कम। सो अगर वो आ भी रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आपको पता है वो आने वाला है। क्रिटिसिज्म आने वाला है, कन्वर्स आने वाला है, ये कुछ बोलने वाला है, ये कुछ सोचने वाला है, तो आप ऐसा मुड़ोगे नहीं, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है क्यों आने वाला है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। यू स्टडीड द मार्केट एंड यू स्टडीड द पीपल इन द मार्केट। आपको मार्केट मतलब पीपल, तो आपने मार्केट भी स्टडी किया और मार्केट में पीपल भी स्टडी किया, उनका प्लस भी स्टडी किया, माइनस भी स्टडी किया। आपके बिजनेस में अच्छे अच्छे सुनने के लिए क्या क्या मिलेगा वो भी स्टडी किया, खराब खराब सुनने के लिए क्या मिलेगा वो भी स्टडी किया। सो यू आर वेल प्रिपेयर टू गो स्ट्रेट along with knowing what's in the left and right, क्या क्या सुनने को क्या क्या चीजें हो सकता है। तो आप जब आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसा मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि ऐसे ऐसा मुड़ के देखना मतलब आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो जहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे ब्रेन नहीं लगा रहे हो जहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे लगा रहे हो जहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं, वहां से एक पैसे का प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखने सोचने के लिए भी प्रोडक्टिविटी आएगा। So seeing here is completely profit, seeing there is completely loss. But situations ऐसे create होंगे जहां पे आप ऐसा देखोगे, लेकिन अगर आप well prepared हो, पहले से well studied हो, well trained हो, advanced trained हो, तो आपको जो भी situation वहां पे आए आप ऐसा नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है वो आने वाला है, और आगे भी आने वाला है, और भी आगे आने वाला है, और ज्यादा आने वाला है। You know it, you are ready यार, आप ऑलरेडी रेडी हो। जब आपको पता है कि अभी मॉनसून आने वाला है, मतलब मॉनसून मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बारिश का सीजन, राइट? नहीं, मॉनसून
मतलब बारिश, बट सीजन क्या बोलते हैं उसको, यू नो मॉनसून, राइट, रेनी सीजन, मॉनसून। अगर आपको पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश सीजन आने वाला है, मॉनसून, when you know very well कि मॉनसून आने वाला है, बरसात, यस थैंक यू सुजय जी, बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में क्या होगा, हेवी बारिश होगा। इंडिया के कोई कोई जगह में तो बहुत खतरनाक बारिश होती है, यू नो वेरी वेल। तो आपको जब पता है कि 1 महीने बाद बरसात आने वाला है और आपको काम पे भी जाना है, आपको स्कूल पे भी जाना है, आपको सोशलाइज भी करना है, मूवी हॉल्स भी जाना है, रिलेटिव्स के घर भी जाना है, दूर ट्रैवल भी करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी करना है, आपको अपना बिजनेस भी करना है। यू नो वेरी वेल कि 1 महीने बाद बरसात आने वाला है और खतरनाक बरसात आता है आपके एरिया में। आप क्या करते हो? आप तो उससे पहले छतरी खरीदते हो ना, उससे पहले आप प्रिपरेशन रखते हो, बरसात आएगा बोल के, दैट्स मीन छतरी लेके बैठते हो। सो यू हैव द अम्ब्रेला इवन बिफोर द रेन स्टार्टेड। इंटेलिजेंट आदमी वो करेगा, और बेवकूफ आदमी बारिश शुरू होने के बाद, भीगने के बाद वो जाके छतरी खरीदेगा, बुखार शुखार आ जाएगा उसको। सो इट मीन्स अगर आपको ऑलरेडी पता है कि बारिश आने वाला है या एकदम आसपास है, तो आप पहले से ही एंटी बारिश प्रिपरेशन करोगे। एंटी बारिश प्रिपरेशन मतलब आप, राइट, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर, आप ऑलरेडी अच्छा खासा छतरी खरीद के बैठे रहो, बारिश आया तो आप उसको यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे और लेके आगे जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना आसान है इसको समझना। सो इट मीन्स कि आपको तो पता है, बिकॉज आपको सीजन पता है, सीजन मतलब क्लाइमेट पता है, वो हर साल ये आता है, इस टाइम को बारिश शुरू होता है, तो आई हैव टू प्रिपेयर। सो इट मीन्स सेम वे, क्यों ना आप अपना इंडस्ट्री का, अपना बिजनेस का मौसम को थोड़ा पढ़ाई कीजिए, सीजन्स को पढ़िए। सीजन मतलब रेनी सनी नहीं बोलता हूं मैं, क्लाइमेट्स को पढ़िए, मतलब जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, लोगों का क्या क्या अच्छा सुनने को मिल सकता है, लोगों का क्या खराब सुनने को मिल सकता है। ट्रस्ट मी, पहले सबसे खराब सुनने को ही मिलेगा, रेडी है सुनने के लिए तो ही आगे बढ़िए। लेकिन याद कीजिएगा, हमारा इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, तो जवाब आप शब्दों से दे सकते हो, आप शब्दों से दे सकते हो, या तो आप नंबर से दे सकते हो। तो आप बोलेंगे सर नंबर से दे सकता हूँ, समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री ऐसा है, ये पर्टिकुलर ये वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर आपको कोई 2-4 बात बोल रहा है, तो उसका आंसर आप शब्दों से भी दे सकते हो, वाया वर्ड्स और विथ नंबर्स। नंबर मतलब आपका मोबाइल नंबर नहीं, आपका बिजनेस नंबर, बिजनेस नंबर मतलब आपका इनकम नंबर, आप उससे दे सकते हो। इनकम नंबर मतलब आपका लाइफस्टाइल ग्रेड नंबर, ए ग्रेड लाइफस्टाइल, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जेड ग्रेड। आप सी ग्रेड लाइफस्टाइल लीड करते थे, बट एक्चुअली आप 3 महीने बाद बी ग्रेड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, 3 महीने बाद बी ग्रेड से ए ग्रेड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। दैट इज द आंसर ऑफ नंबर्स, बिकॉज आपका बिजनेस का नंबर्स यूज कर रहे हैं, आपका टीम का नंबर बढ़ रहा है, बिजनेस का नंबर बढ़ रहा है, आपका इनकम का भी नंबर बढ़ रहा है। तो आप जवाब नहीं दे रहे, उसके बाद आप शब्दों से जवाब नहीं दे रहे, आपके जो अक्षर है ना बैंक अकाउंट में, और आपके जो अक्षर है टीम साइज का, वो जवाब दे रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। उससे ना जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। सो क्या होता है, जब आप बोलेंगे, एक क्रिकेट में एक डायलॉग है, जब आप बोलेंगे तो कुछ ही लोग सुनेंगे, जब आपका बल्ला बोलेगा, बैट आपका बल्ला बोलेगा, तो पूरा दुनिया ऑटोमेटिकली सुनेगा, क्योंकि बल्ला, आपका मुंह से शब्द निकल सकता है, आपके बल्ले से नंबर निकल सकते हैं, मतलब सिक्सर निकल सकते हैं, और सब लोग चेयर अप करेंगे। क्रिकेट मैच चल रहा है, 50,000 लोग ग्राउंड में बैठे, आपने सबको बोला यस, कितने को सुनाई देगा, ग्राउंड तक जाएगा नहीं। आपने एक सिक्सर माना तो सब बोलेंगे यस, आपको बोलेंगे। आप 50,000 ग्राउंड में, आप क्रिकेट समझते ना, आई थिंक मैक्सिमम लोग इंडियन, नेपाल में भी क्रिकेट आजकल बहुत फेमस है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो क्रिकेट क्वाइट वेल। सो आप क्रिकेट खेल रहे, यू आर अ बैट्समैन, और आप लोगों का यस सुनना चाहते हैं, वाव सुनना चाहते हैं, तो आप सबको बोल रहे वाव बोलो, तो जाएगा ही नहीं, आवाज जा ही नहीं सकता स्टेडियम तक आपके पीठ से। लेकिन अगर आपने एक सिक्सर मारा, 2 सिक्सर मारा, तो ऑटोमेटिक लोग आपके लिए यस ग्रेट ग्रेट बोलना शुरू करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है, ज्यादा आप ताकत, ज्यादा आप समय सबको बोलने में लगाएंगे, या ज्यादा काम करने में लगाएंगे और अचीवमेंट करने में लगाएंगे। आप अगर रिजल्ट लाते हैं, वो रिजल्ट लोगों को लाएगा। अगर आप सिर्फ शब्द ले जाते हैं तो क्रिटिसिज्म लाएगा। डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या करना है।
बहुत कोर ट्रूथ है, दैट्स अ कोर साइंस कि if you are going to take the words it will bring criticism, if you are going to take the results it will bring every people, because इंसान ऑटोमेटिकली फायदे का यार होता है। हर कोई इंसान ना अपने अपने लेवल में फायदे का यार होता है। फायदे का यार है मतलब जहाँ पे फायदा दिख रहा है वहां पे वो अच्छा ही सोचता है और वहां पे जाने का कोशिश करेगा अगर फायदा सही रास्ते में है। सो जो लोग पहली बार ये बोल रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, इसका तो 2-3 महीने में बंद हो जाएगा, 2-3 महीने में बाद जब आप करते ही जाओगे घोड़े जैसा इस साइड ना, तब वो आपको जरूर आपके बारे में वो लोग वही गॉसिप करेंगे, ये करता क्या यार, पूरा दिन बिजी रहता है, काम भी करता है। अभी देखता हूँ पहले तो अकेला जाता था, आजकल उसको कोई कोई पिकअप करने आता है, हाँ, लोग होते उसके साथ, पता नहीं कर रहा है, देखो यार क्या होता है उसका, चलो देखते हैं। और 2-3 महीने बाद सच में चलो भाई जाके देखते हैं कर क्या रहे, क्योंकि साइकिल वाला बाइक वाला बन चुका है। बात समझ गए है ना, अब साइकिल वाला थे अभी बाइक वाला बन चुके हैं 6 महीने में। यार जाके सच में देखते यार, पहले में क्या बोल रहे थे, अरे देखेंगे यार बंद हो जाएंगे, देखते रहो, एक दूसरे को बोल रहे थे देखते रहो, ये इसका हाल तो होने वाला है, इसका पंचर होने वाला है। 2-3 और पहले फर्स्ट डे 2-3 महीने बाद क्या बोलते हैं, देखते हैं यार क्या करता है आगे, कर तो रहा है बंदा। और 2-3 महीने बाद भाई चलो देखते हैं जाके वो करता क्या है यार, उसका साइकिल से बाइक हो गया, हमारे पास तो ऑलरेडी बाइक है, गाड़ी ना हो जाए, चलो यार जाके देखते हैं, हो सकता है गाड़ी भी हो जाए, चलो जाके देखते हैं। कुछ टाइम बाद चलो जाके करते हैं और वो लोग करेंगे। आर यू एबल टू गेट मी? आया कुछ समझ में, नहीं आया? दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये इस इंडस्ट्री का रूल है, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये इस इंडस्ट्री ने बनाया। सोचिए इंडस्ट्री एक नेचर है, इसने बनाया, ये ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसे ही रहने वाला है। अगर इसको हम लोग समझ जाए इस इंडस्ट्री का साइकोलॉजी, people psychology about this industry and people psychology in this industry. One more time, people's psychology about this industry and people's psychology inside the industry. दोनों में फर्क है दोस्तों। About the industry मतलब आप इंडस्ट्री के बाहर हैं, आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक हुआ। और दूसरा होता है इन द इंडस्ट्री मतलब आप इंडस्ट्री के अंदर हैं और क्या सोचते हैं। Are you able to get me? क्या समझ पाए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? If we are well trained, अगर आप एडवांस स्किल ट्रेनिंग लेते हैं, होगा किसी टाइम, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, किसी दिन पेश जरूर करूंगा आप लोगों को। अगर if we understand the philosophy and psychology of the people, of what people think about the industry and in the industry, about मतलब लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं और इंडस्ट्री के अंदर रह के क्या सोचते हैं, दोनों में दो डिफरेंट थिंग है। मतलब जिसने कभी ज्वाइन नहीं किया वो क्या सोचता है, जिसने कभी किया नहीं एमएलएम वो क्या सोचता है, और दूसरा कैटेगरी लोग जिन्होंने किया है या कर रहे हैं या करते जा रहे हैं वो लोग क्या सोचते हैं। अगर ये दो फैक्टर ऑफ फिलोसॉफी साइकोलॉजी आप समझ गए, आप प्रिपेयर्ड हो गए, सच में आपको हराना बहुत मुश्किल बात होगा। आपको मतलब रियली आपका ओनली किस्मत ही आपको हरा सकता है, आपका बैड लक आपको हरा सकता है, कोई नहीं। और किस्मत इतना भी फूटा नहीं होता है। एक कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप सच में बहादुर हैं और सच में आपके अंदर करेज है, आपके अंदर हौसला है, किस्मत साथ देना ही देना है ना। ऊपर वाला इतना भी बेरहम नहीं होता है, साथ देगा ही देगा, किसी का ज्यादा देगा किसी का कम देगा, लेकिन देगा ही देगा, आगे होगा ही होगा काम। ये चीज को याद कीजिएगा। जस्ट दैट यू हैव टू नो दैट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इफ यू नो मेरा मेहनत सक्सेस थैंक यू अमित जी, थैंक यू। बिल्कुल आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट, आप तक जो पहुंचा सकता हूँ, मेरे से जो पहुंचा सकता हूँ मैं वो इनपुट दे रहा हूँ, उस इनपुट को यूटिलाइज कर तो डेफिनेटली आउटपुट आएगा। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप फील्ड में उतरिए। मैंने जो 3 स्टेज आपको बोला, अरे देखें, अरे हम देखेंगे यार वो बंद होने वाला है, अरे यार देख लेंगे, अरे यार ऐसा बहुत देखे हैं, ये बंद होने वाला है। पहले वो मतलब वो आपका फ्यूचर देख चुके हैं, अंतर्यामी है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्योतिष है या मौलवी है शायद, कि वो देख चुका है क्या होने वाला है। समझ गया ना बात, राइट? वो क्या होने वाला है वो देख चुका है। फर्स्ट डे 1 में जब शुरू कर रहे हैं, साइकिल से शुरू करें, साइकिल ही आपके पास, ओके। लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कर तो रहा है बंदा। पहले वाला में क्या बोला, वही इंसान सोचे आपका ही वो दोस्त होगा मैं या आस पड़ोस या रिलेटिव होगा, तथागत चक्रवर्ती, राइट? जो आपको पहले बोल रहा था ये मेरे साथ 10-15 है
चिप्स बांटते वक्त चाय पीते हुए गॉसिप गॉसिप समझते हैं ना, गप्पे गप्पे क्या होता है, अपने डेवलपमेंट का गप्पे लोग कम करते हैं, दूसरे का क्या हो रहा है वो गप्पे थोड़ा हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं। आई थिंक नेपाल में भी सेम चीज होगा, पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ये वायरल चीज है, यही होता है। एंड दिस इज व्हाई जीडीपी नहीं उठ रहा है। जो आदमी दूसरे के काम का बात करेगा तो जीडीपी तो उठेगा नहीं उसका, और अगर करोड़ों लोग ऐसे करेंगे तो देश का जीडीपी नहीं उठेगा। दिस इज एक्चुअली आवर कल्चर ऑफ इंडिया। आई थिंक नेपाल में भी थोड़ा थोड़ा होगा ऐसा सिमिलर कल्चर। हम लोग को बहुत इंटरेस्ट है दूसरे का मतलब ऊपर करने के लिए। सो पीपल विल सिट एंड गॉसिप, लोग गॉसिप करते हैं। पहली बार आपके बारे में जज कर रहे हैं, अरे यार ऐसे बहुत देखे यार, अरे देखेंगे यार, वो तो बंद हो जाएगा 2-3 महीने बाद फट के वापस आएगा। लेकिन वो पहले दिन बोला मंथ 1, मंथ 3 में वो बोल रहे हैं यार देखते हैं, बंदा तो कर रहा है काम, आगे बढ़ रहा है, आजकल देखता हूँ बहुत बिजी रहता है, चलो देखते हैं क्या आगे क्या होता है। मंथ 6 में वही लोग बोल रहे हैं यार सच में यार चलो जाके देखते वो क्या करता है यार, सर देखते समझते यार वो क्या करता है। साइकिल था 6 महीने में बाइक कमा लिया है। हम देखते हैं समझते हैं, और अगर ठीक लगता है तो करते हैं। आ गया आपका नेटवर्क। आप ही बोलते हो ना सर मैं किस तरीके से पावरफुल पीपल को राइट को लेके तो मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना सर में पावरफुल पीपल जिनके पास नेटवर्क है, लोगों का कनेक्शन है, लोग जान पहचान है, लीडरशिप है, कॉर्पोरेट में काम करते पढ़े लिखे लोग, उनको मैं किस तरीके से लेके आऊं। सर मेरे नेटवर्क में आ नहीं रहा है। मेरे नेटवर्क में वो मेरा रिलेटिव, मेरा मामा जी इस लेवल में है, मेरा चाचा उस लेवल में, मेरा दोस्त उस लेवल, मेरा भाई उस लेवल है, मेरा कोई बहन है, मेरा कोई ये है, मेरा कोई वो है, मेरा पड़ोसी, सब हाई लेवल में है। दे आर पावरफुल एंड दे आर राइट पीपल, बट सर आई एम नॉट एबल टू गेट देम। नो प्रॉब्लम, यू विल गेट देम। जस्ट डू योर वर्क राइट वे एंड पावरफुली। अपना काम को राइट तरीके से कीजिए और पावरफुली कीजिए। राइट एंड पावरफुल पीपल ऑटोमेटिकली आएंगे, बिकॉज अब उनको दिखने लगेगा, उनको समझ में आने लगेगा, और ऑटोमेटिकली बिकने भी लगेगा कि हाँ चलो यार करते हैं। दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, राइट। तो मैं सोचा आज मेरे तरफ से इतना है, क्योंकि आज इंग्लिश सेशन था, आज थोड़ा क्राउड भी कम था, तो मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बोलना था, बट आई विल डू इट टुमारो। मतलब प्रोडक्ट का आपको मुझे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना था, बट आई थिंक आई विल डू इट टुमारो, बट बिकॉज वी हैव अ लेस ऑडियंस। क्या होता है इंग्लिश सुनते ही, मैं जानता हूँ जिस भी दिन इंग्लिश होता है क्राउड कम होता है। whenever there is a इंग्लिश में प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इंग्लिश मतलब कोई भूत प्रेत आता होगा, कोई डरावना चीज होगा इंग्लिश में, चैंग चांग पांग चांग। अरे चीनी नहीं है यार, इंग्लिश बोल रहे हैं, सिंपल वाला है, चीनी थोड़ी क्या चांग पांग चांग कुका बोल के ऐसा चमगादड़ भी खा रहे, सांप भी खा रहे, वो थोड़ी भाषा बोल रहे हैं यार। वी आर राइट, वी आर टेलिंग मिनिस्टर लेवल, ये रिश्ता जोड़ना है लेबर टू मिनिस्टर, करेक्ट विजय मालाकर जी, करेक्ट। आप लेबर के साथ ही बढ़िया काम कर रहे हैं ना, तो और उससे भी सक्सेस हो रहा है, तो मिनिस्टर सोचने लगेगा यार ये लेबरों के साथ काम के भी काम बनता है, तो हमारे साथ काम होगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। इसका लेवल यहाँ पे, इसका कांटेक्ट लेवल यहाँ पे, आप जिसको खींचना चाहते हैं ना वो इस कांटेक्ट लेवल में है, बट वो आ नहीं रहा है, और आप इस कांटेक्ट लेवल में है। तो वो देख रहा है अच्छे से एनालाइज करके कि ये इस कांटेक्ट लेवल आदमियों के साथ काम करके भी ऊपर जा रहा है इसका ग्राफ। तो अगर इसका ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब काम सही है, काम सही दिशा में जा रहा है, तो मैं करूंगा तो मेरा तो उससे ज्यादा उठेगा। चलो जाके देखते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं, सही लगा, काम का लगा तो करते हैं। अब आपका बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई कीप डूइंग, डोंट से लेफ्ट एंड राइट, बट स्टडी अबाउट द लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू गो स्ट्रेट। One more time, study about the left and right before you decide to go straight. Otherwise, if you don't study about the left and right, then you are going to be distracted to the left and right. आप रास्ता भटक जाओगे। That's why आपका left और right क्या है? Right का नाम है, left का नाम है the philosophy and psychology of the people about this industry. और right का नाम है the philosophy and psychology of the people in this industry. लोगों का सोच विचार इस इंडस्ट्री के बारे में वो लेफ्ट है, लोगों का सोच विचार इस इंडस्ट्री के अंदर वो स्किल डेवलप करना है। दूसरा जो अंदर में रहते हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में सोच विचार करते हैं। ये दोनों आप इक्विप्ड हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, समझ थोड़ा ज्यादा ब्रेन डालना पड़ेगा,
The day you know it, you can win people because you will know which people how to win. किसको कैसे जीतना है, किसको कैसे कन्विंस करना है. अलग अलग मछली को अलग अलग हुक देते हैं पकड़ने के लिए. कौन सा मछली को क्या हुक डालना है, यू विल नो इट. और वो जाल आपको क्या करना है, वो छिप डाल के रखना है. फिशरमैन नहीं करते, छिप डाल के रखता है. आपको मछली नहीं ढूंढना है. इट्स नॉट पॉसिबल कि पानी में कूद के आप मछली ढूंढोगे, वो हम नहीं कर सकते. बट आपको सही छिप डालना है, सही हुक डाल के रखना है. ऑटोमेटिकली मछली जो फंसता है वो फंसेगा, बिकॉज आपको पता है मुझे कौन सा मछली को लेके आना है. अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करना है, इस मछली को ले आने के लिए मुझे क्या करना है, हुक अकॉर्डिंगली बनाना है और टाइमिंग अकॉर्डिंगली सेट करना है. देन ऑटोमेटिकली काम होगा. दिस इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल्स. इस दुनिया में दो ही टाइप के लोग राज करेंगे, याद कीजिएगा. ये आप अपने ना, ये आप इस काम कीजिए, अपने डीएनए में घुसा लीजिए, अपने नसों में घुसा लीजिए, मैं जो अभी बोलने वाला हूँ इस दुनिया में. बिकॉज नाउ वी आर इन अ वेरी मॉडर्नाइज्ड एडवांस्ड वर्ल्ड. हम लोग मॉडर्नाइज्ड एडवांस्ड वर्ल्ड में हैं. इस दुनिया में दो टाइप के लोग ही राज करेंगे, जीतेंगे. द इंटेलेक्चुअल्स एंड द इन्फ्लुएंशियल्स. आया समझ में? तो फिर से बोल रहा हूँ, इस दुनिया में दो टाइप के लोग ही राज करेंगे. पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, हम सब लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इट्स ओपन टू ऑल. Public industry, public health industry, wellness industry, network industry. So we are in a public health and public wealth industry. याद कीजिए, we are in a public health and public wealth industry. इस इंडस्ट्री में दो टाइप के लोग ही राज करेंगे, हीरो बनेंगे. एक द इंटेलेक्चुअल्स एंड दूसरा द इन्फ्लुएंशियल्स. समझ में आया? इसको मैं किस तरीके से आपको हिंदी में बताऊं, ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा. द इंटेलेक्चुअल्स एंड द इन्फ्लुएंशियल्स, वो मैं आपको जरूर कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा कैसे इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल से जीत सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, इन्फ्लुएंशियल मतलब जिसके पास प्रभाव है, प्रभाव करने वाला आदमी. इन्फ्लुएंशियल पीपल मतलब जो इन्फ्लुएंस पहुंचा सकते हैं. और इंटेलेक्चुअल्स पीपल मतलब जिनको इन्फ्लुएंस पहुंचाना आता है. आर यू एबल टू गेट मी? क्यों मैंने इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल्स बोला? इन्फ्लुएंशियल्स लोग वो होते हैं जिनको प्रभाव, जो प्रभाव पहुंचा सकते हैं. और इंटेलेक्चुअल्स मतलब जिनको प्रभाव पहुंचाना आता है. That's called the intellectual and influential. ये दो आई ही रूल करेगा इस इंडस्ट्री में. अगर ये दो आई, आपको ये दो आई बनना है. पहला आई आपको इंटेलेक्चुअल बनना है, ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे. क्योंकि इन्फ्लुएंशियल मतलब आपके पास 100 लोग हैं, उनको किस तरीके से, उनको आपके 100 कॉन्टैक्ट है, 100 को प्रभावित करके काम करना, 100 प्रभावित करके जोड़ना और उनको आगे काम कराना, 100 से हजार, हजार से लाख बनाना. दैट्स इन्फ्लुएंशियल. बट आप तभी कर सकते हो व्हेन यू आर इंटेलेक्चुअल. बिकॉज इंटेलेक्चुअल को पता है, कैसे सीख जाएगा, समझ जाएगा, पढ़ाई कर लेगा, हाउ प्रभावित कैसे बनना है, प्रभाव वाला आदमी कैसे बनना है, प्रभाव कैसे डालना है. दबाव नहीं, प्रभाव. नॉट दबाव. दबाव मतलब प्रेशर, प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस. और इन्फ्लुएंशियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब उसके पास 100 लोग हैं. दे विल नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल. इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल, आपको दो चीज बनना है. इंटेलेक्चुअल पहले बनेंगे तो इन्फ्लुएंशियल होगा. इन्फ्लुएंशियल पहले होके इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता. स्टेज 1 इज द इंटेलेक्चुअल. Automatically the stage will, and the stage 2 is the influential. Automatically result आएगा. ये दोनों लोग ही राज करेंगे. तो आपको ये बनना है इस इंडस्ट्री का राजा बनने के लिए. राइट? थैंक यू सो मच. पास ओवर टू अंजान सर. मेरे तरफ से जितना था मैंने आज बोला, बिकॉज क्राउड कम था, इंग्लिश सुन के आए नहीं बहुत सारे लोग, या तो शायद मेरा इंग्लिश चाइनीज जैसे सुनने के लिए लगता होगा, मेरा अंग्रेजी शायद चिंग चांग चाउमीन ऐसा सुनने में लगता होगा, उनका वो सांप फ्राई, क्रोकोडाइल फ्राई जैसा लगता होगा सुनने में शायद, इसलिए बहुत लोग नहीं आए होंगे डर के मारे. ऐसा तो मुझे नहीं लगता. मेरा इंग्लिश ऐसा डरावना टाइप का है. चमगादड़ फ्राई, सांप फ्राई, क्रोकोडाइल फ्राई सब तो नहीं है, बस इंसान फ्राई करना है, बाकी था चाइना में. थैंक यू so much. Wish you a great day. Great day means productive day. Remember, आपको बनना है intellectual, automatic. Over to Anjan sir. Okay, thank you sir. Thank you for the wonderful session. आपने तो आज मतलब मार्केटिंग टिप्स भी दे दिया. आज मार्केटिंग टिप्स के ऊपर मेनली बिकते हैं वही बिकते हैं, वही है. मतलब हम लोग को वही करना है. हम लोग को अपने आप मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को रख के हमारा खुद का काम करते जाना है. करने से